So, a very welcome all of you in today's session. In the concept series, today we'll be starting with inflation. A very relevant topic in present context. Inflation क्या है and why we are discussing inflation. So, inflation, the recently data of the inflation has come and our inflation, जो इंडिया का inflation है, that is close to 8%. Inflation means rise in the prices. और आज हम लोग समझेंगे the concept of inflation, how the inflation impacts common man, what are various types of inflation, inflation को measure कैसे करते हैं, and logically how would we counter inflation, and we'll be solving a lot of MCQs. हम लोग बहुत सारे MCQs भी लगाएंगे. So get ready for the understanding of inflation and let's take the concept. तो inflation क्या है? Inflation is nothing but price rise. Okay, and I want everybody to engage in the process. सभी लोग engage करेंगे. You're going to put the questions. I can see your name on the screen. I can see the comments also. So everybody put here. हम लोग समझेंगे the concept of inflation in detail, in depth. So are you ready? Let's start. So inflation क्या है? Why? What is inflation? So inflation means rise in the general level of prices. Rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time. यानी हम लोग बात कर रहे हैं rise in the prices. Prices of what? Prices of goods and services. Are we talking about one or two item? No, we are talking about the basket of item. हम लोग basket of items की बात कर रहे हैं. We are not talking about one or two item. Inflation में हम लोग measurement कर रहे हैं. We are trying to understand how inflation is impacting or how price rise is happening over a period of time. Broadly, inflation में क्या होता है? Right? The first thing, there is a persistent rise in the price and it signifies, उसके significance क्या होते हैं? The first significance is decrease in the value of money and decrease in purchasing power. यानी inflation का जो सबसे पहला impact होता है decrease in the value of money. क्या मतलब है? What is the meaning of that? Let's take an example. So let's take an example. So let's say 100 rupees, you have 100 rupees, आपके पास 100 rupees है and you are purchasing a, let's say, chocolate, right? And every chocolate was 10 rupees, right? So let's say this chocolate is 10 rupees. So how many chocolate you can purchase? You can purchase 10 chocolates, right? You can purchase 10 items of chocolate. Now let's say the price of the chocolate increases from 10 to 20 rupees. अभी इसी 100 में हम कितने chocolates purchase कर सकते हैं? Now we'll just only purchase 5 chocolates. ठीक है? Now which means what? Which means there is decrease in the purchasing power. अगर मैं बात करता हूं परचेजिंग पावर की, परचेजिंग पावर ऑफ व्हाट? परचेजिंग पावर ऑफ मनी. परचेजिंग पावर ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन. ठीक है, पहला तो ये होगा द वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन बिकॉज इन सेम मनी यू कैन परचेज लेस आइटम. आपको उसी पैसे में आप कम खरीद पाओगे. सो देयर इज डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, आपका परचेजिंग पावर डाउन होगा एंड देयर इज ऑल्सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी. नाउ क्वेश्चन कम्स दैट how does it impact common people? Because that is most important. How does it impact poor? How does it impact? उसका impact क्या है? Impact on poor, impact on let's say lower middle class, impact on those people who have fixed income. ठीक है, आपका income कम है, it is less and it is fixed also. So how does inflation is going to impact them? So that is what the consideration is. अभी हमारा inflation is close to 8% today. If the recent data, अभी कल ही का data आया है, the inflation has reached around 8%. तो 8% का मतलब है कि average price rise is by 8%. Now, which is a big challenge for everybody. So it signifies decrease in value of money and it signifies decrease in the purchasing power. यानी inflation का सबसे बड़ा impact होता है कि हमारा money का value कम हो गया है and you can purchase less in the same item. Imagine that your income is fixed, आपका income fixed है, and the prices increase by 10%, which means your expenditure will also rise by 10%. आपके सारे खर्चे भी 10% से बढ़ जाएंगे. If expenditure also rises by 10%, which means it will impact you negatively. आपका saving impact होगा. You have to spend more money in the same, in the same income. So that is how the inflation can be seen as a challenge. ठीक है, so it is a price rise which happens in the economy over a period of time. Now
गोइंग फॉरवर्ड, नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए, फॉर कॉमन पीपल लाइक अस, नॉर्मल हाउस होल्ड फॉर कॉमन पीपल, द प्राइस स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यानी हमारे सभी लोगों के लिए, जो भी नॉर्मल हाउस होल्ड पीपल है, वी वॉन्ट प्राइस स्टेबिलिटी, एंड द प्राइस स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमारे लिए प्राइस का होना, स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप इमेजिन करो कि इफ यू सी द नॉर्मल हाउस होल्ड, अ कॉमन मैन, यानी एवरेज इंडियन जो है, ओके, इफ आई से अबाउट द एवरेज इंडियन, कि एवरेज इंडियन के साथ, एवरेज इंडियन का व्हाट इज द इनकम ऑफ एवरेज इंडियन? पूरे इंडिया का अगर हम एवरेज इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, नहीं प्रति व्यक्ति आए, यानी पर कैपिटा इनकम, इट इज समवेयर अराउंड $2200, 2200, इट इज $2200, ठीक है, $2200, which means equivalently this will be around let's say 1.6 lakh, ठीक है, या 1.7 लाख, अभी 75 से ऊपर है, सो लेट्स अज्यूम 1.7 लाख, यानी 1,70,000 रुपए, 1.7 लाख इज द एवरेज इनकम। एंड इफ आई डिवाइड बाय 12, तो हमारा पर मंथ आ जाएगा, एंड द पर मंथ इज अराउंड हाउ मच, अराउंड 14,000 रुपीज अप्रॉक्स। ओके, दिस इज एन एवरेज इनकम ऑफ इंडियन। तो यानी अगर आप देखोगे, दिस इज लेट्स से दिस, ये पिरामिड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एवरेज, ये जो नीचे वाले लोग हैं, ऑलमोस्ट यू कैन से 70% ऑफ पॉपुलेशन, दे फेस द बिग चैलेंज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इनको इंपैक्ट करता है हेविली, बिकॉज उनका इनकम फिक्स है, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो इंपैक्ट होगा। आप इमेजिन करो, आपका फूड कॉस्ट महंगा हो जाएगा, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट महंगा हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन इज नॉट अबाउट वन आइटम, इन्फ्लेशन एक आइटम की बात नहीं है, इन्फ्लेशन इज अबाउट बस, इट इज अ बकेट ऑफ, यस, इट इज अ बास्केट ऑफ आइटम जिससे प्राइस बढ़ता है। For normal household, price stability is an essential condition for stability in economic life. It can lead to erosion of real income. यानी आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो इरोड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका इनकम अभी कम दिखाई देगा, एंड द रीजन इज दैट योर इनकम इज, इट फील्स लाइक योर इनकम इज लेस। ओके, सो दैट इज अ चैलेंज दैट यू वुड कम अक्रॉस। उसके अलावा दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैक्रोइकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन कैन बी अंडरस्टूड एज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड। यानी इन्फ्लेशन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं दैट टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद सम एग्जांपल्स। यानी क्या है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड? आई होप द पीडीएफ विल बी शेयर्ड, क्लास में हम लोग शेयर कर देंगे, डोंट वरी। राइट, सबको समझ में आ रहा है? एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? डू लेट मी नो इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम। किसी को भी दिक्कत हो रहा है आप मुझे बताइए। राइट गाइस, चलो, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, व्हाट डज इट मीन? इमेजिन करिए, ओके, सो इमेजिन मनी इन द इकोनॉमी, लेट्स से पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई, मनी सप्लाई नेक्स्ट टॉपिक है ऑन मंडे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट लेट्स अज्यूम पूरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई एक्स है, लेट्स से पूरी मनी इकोनॉमी मनी सप्लाई एक्स है, एक्स कुछ नंबर होगा, एक्स विल बी सम नंबर, सम लैक्स ऑफ करोड़, लेट्स से। अब ये मनी सप्लाई एक्स है, बट ये मनी क्यों है? व्हाई द मनी इज देयर इन द इकोनॉमी? मनी, रिमेंबर व्हाट आई सेड, मनी इज लाइक अ मेजरिंग रॉड। मनी एक मेजरिंग रॉड की तरह है। मनी क्यों आया? बिकॉज मनी विल बी इक्विवेलेंट टू, मनी जो होगा, जो भी मनी हम ऐड करेंगे, विच विल बी इक्विवेलेंट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। पूरी इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मनी के बराबर होना चाहिए। सो लेट्स से देयर इज अ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी एज वाई, यानी पूरी इकोनॉमी में वाई गुड्स एंड सर्विस हमने प्रोड्यूस किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ वाई गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट एक्स मनी, हम इमेजिन कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में वाई गुड्स एंड सर्विसेज है, एंड इट इज अगेंस्ट एक्स मनी। इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट y इज अवेलेबल एट x रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि y को आप x रुपीज में खरीद रहे हो, ठीक है। अब क्या करते हैं? लेट्स ऐड द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। लेट्स ऐड x प्लस a, हमने a कर दिया इसको, लेट्स अज्यूम, राइट, हमने a कर दिया, ठीक है। डोंट वरी बेटा, रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग दूसरे सॉफ्टवेयर पे हो रही है, ओके। x प्लस a हो गया।
नाउ व्हाट हैपेंस, द सेम सिचुएशन, आपने क्या किया, आपने मनी को बढ़ा दिया. नाउ पहले y वाज अवेलेबल एट x रुपीज, नाउ y इज अवेलेबल एट x प्लस a, यानी इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ, ओके, इसका मतलब हुआ नाउ पहले y वाज अवेलेबल एट x रुपीज, अभी y इज अवेलेबल एट x प्लस a, मतलब y इज कॉस्टली नाउ, विच मींस देयर इज अ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है. लेट्स अज्यूम x 100 था, लेट्स अज्यूम, और a जो है 10 है. सो y पहले 100 रुपीज का था, एंड नाउ y इज अवेलेबल एट, लेट्स से y को हम न्यू y कह लेते हैं, ठीक है, y तो सेम ही है, नाउ y इज अवेलेबल एट 110 रुपीज. इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, व्हाट डज इट मीन. इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट इफ यू ऐड मनी सप्लाई, जैसे हम इकोनॉमी मनी सप्लाई ऐड करते हैं, सो आइटम्स विल बी नाउ कॉस्टली. इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट x प्लस a, यानी मनी बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है, सी दिस स्टेटमेंट, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी पहले हमने क्या कर दिया, इफ इन्फ्लेशन इज हैपनिंग विच मींस टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, गुड्स कम है, मनी सप्लाई ज्यादा है. सो इफ मनी इज इंक्रीज बाय समहाउ, इट कैन बी इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन, यानी जब भी मनी सप्लाई इकोनॉमी हम बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. यू कैन सी ऑपोजिट ऑल्सो, कि अगर इन्फ्लेशन हो गया है, इसका मतलब है दैट मे बी मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में ज्यादा हो गया है. Okay, so always remember, money supply has direct correlation with inflation in the economy, the inflationary tendencies in the economy. If money is more, inflation will automatically happen. अब सवाल उठता है कि मनी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्यों होगा, because when money is more, people will have more money in the hand. अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है तो लोगों के पास भी पैसा ज्यादा होगा, और जो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, दैट मीन्स पीपल कैन परचेज मोर थिंग्स. ठीक है ना, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं. So you can understand the concept of inflation like this.